لاہور میں رحمان فاؤنڈیشن کے آفس میں ہم موجود ہیں. یہاں پر ڈاکٹر وقار احمد نیاز اور ان کی ٹیم بیٹھتی ہے جو لوگوں کی خدمت کرتی ہے علاج معالجہ کے حوالے سے. خاص طور پر گردوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ڈائلیسس کو ڈیلے کیا جاتا ہے. یہ فارمولہ کہیں اور نہیں اپلائی ہوتا بلکہ یہاں پر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائلیسس جو ہے وہ کئی سالوں تک ڈیلے کیا جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر وقار احمد نیاز اور ان کے پاس آئے ہوئے پیشنٹ کے پاس. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم نے اکثر یہ سنا ہے جو پیشنٹ یہاں سے مطمئن ہو کے بھی جاتے ہیں کہ ڈائلیسس جو ہے وہ آپ ڈیلے کر لیتے ہیں. یہ کس طرح ڈاکٹر صاحب ممکن ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی تعریف فیس بک پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی لگے جہاں جہاں ویڈیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی الحمدللہ بیسیکلی یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کے ڈائلیسس کو ڈیلے کر لیتے ہیں. یہ ہمارا ایک پورا ریسرچ کا سسٹم ہے. اچھا. اور یہ رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر ہے جو رحمان فاؤنڈیشن جہاں ہم ڈائلیسس فری کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ ادارہ ہے. جی جی. یہاں پہ ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ڈائلیسس کو ہم 10 سال کے لیے, 15 سالوں کے لیے, 20 سالوں کے لیے, 26 سالوں کے لیے, ایسے پیشنٹ ہیں میرے پاس جن کو 23 سال ہو گئے ہیں, 24 سال ہو گئے جب سے میں نے یہ شروع کیا ادارہ. جی جی. ابھی سے وہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, ابھی تک وہ ڈائلیسس پہ نہیں گئے. اچھا. اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ایسا بڑا کام تو ہو رہا ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ایسا ممکن تو بڑا کم ہوتا ہے کہ ڈائلیسس پہ جب پیشنٹ چلا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں جی کمزوری کی طرف ہی جا رہا ہے, تو آپ ڈیلے کر لیتے ہیں, یعنی پیشنٹ جو ہے وہ ڈیلے سے مراد یہ کہ ہم ڈائلیسس ہونے نہیں دیتے ہیں. جو ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے جی جی ہم وہ کہتے ہیں چلا ہی گیا ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارا ادارہ ہے جہاں پہ ہم فارم ملتا ہے جہاں سے ڈائلیسس ہوتے ہیں لوگوں کے, اور وہ ڈائلیسس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فری میں ڈائلیسس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈائلیسس پہ جانا تھا, ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا, میڈیکل نے کہہ دیا تھا کہ اب آپ کو ڈائلیسس کی طرف جانا ہے. سال بعد چلے جائیں گے, 6 ماہ بعد چلے جائیں گے, یا 2 سال بعد چلے جائیں گے. جن کو ہم نے نہیں جانے دیا, ہم کہتے ہیں کہ یہ خوراک لیں اور یہ خوراک نہ لیں. یہ غذائی چارٹ پہ ہم عمل کرواتے ہیں. مناظر بھی ایک غذائی چارٹ بنایا ہے, اس کو بڑی سال لگے, 2.5 سال لگے بنانے میں. یہ ایسڈ ہے, یہ الکلائن ہے. ہم کہتے ہیں یہ چیزیں نہ کھائیں اور یہ چیزیں کھائیں. میں صرف سمپل سے مثال دینے لگا ہوں کہ شوگر والے لوگوں کے لیے کریلے اچھے ہیں, جامن اچھا ہے, بھنڈی اچھی ہے. گردے والے لوگوں کے لیے, جو گردے کے پیشنٹ بن جاتے ہیں, جن کا یوریا کریٹم بڑھ جاتا ہے, ان کے لیے چیزیں اچھی نہیں ہیں. بے شمار یہ غذائی چارٹ آپ لے سکتے ہیں, اس کا خیال کر سکتے ہیں تاکہ ہم ڈائلیسس سے بچ سکیں. جو ہم نے میڈیسن بنائی ہے وہ دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر یہ کام تو پروو کیا ہے. اچھا. یہ 50 لوگوں کا جو ریسرچ میں دے کر آیا ہوں ہارورڈ کو. اچھا. اللہ کا شکر ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں, میرے پاس 10,000 لوگ ہیں, 10,000 لوگ موجود ہیں میرے پاس. انہوں نے کہا ہمیں سے 50 لوگ ہی چاہیے. ہم نے 50 لوگوں کا ڈیٹا دیا ہوا ہے 2018 میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, کرنل صاحب سے تھوڑی بات کرتا ہوں, پھر میں چاہوں گا کہ جو آپ کے پیشنٹ ہیں نا ان سے بھی بات چیت کی جائے. کرنل ریٹائرڈ اشفاق صاحب بھی موجود ہیں. یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ چونکہ ایک معتبر رائے آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو پوچھتے ہیں کرنل صاحب, بتائیے گا کہ اس سیٹ اپ کے اندر آپ کا کیا رول ہے؟ میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میں نے سنا اور کافی عرصے سے میں اس تگوداؤ میں تھا کہ میں جانوں کہ یہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں یا یہ ہوائی باتیں ہیں. تو میں اس سلسلے میں ریسرچ کر رہا ہوں, اور آج ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایسے پیشنٹس کو میرے سامنے لے کے آئیں جن سے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں, ان کی رپورٹس دیکھنا چاہتا ہوں. کیا واقعی یہ ساری حقیقت ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈائلیسس آپ ڈیلے کر لیں, اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے نہیں, مدتوں, سالہ سال. یہ بہت ہی غیر معمولی کام ہے. تو اس لیے میں آج حاضر ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ میں بالمشافہ ایسے لوگوں سے ملوں اور ان کی رپورٹس اور ان کی رائے میں سنوں کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ. اچھا, آپ ریسرچ کر رہے ہیں؟ ریسرچ کر رہا ہوں. یہ بڑا اچھا ہو گیا ناظرین کہ کرنل اشفاق صاحب جیسے معتبر لوگ اگر ریسرچ کریں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ کوئی اچھا ہی آئے گا. کرنل صاحب آپ کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں. ملک رمضان ایک مریض ہیں یہاں پر جو یہاں پر آتے ہیں, شفا یاب بھی ہوئے ہیں, تو پوچھتے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اب کب سے آ رہے ہیں؟ میں 2023 سے آ رہا ہوں. 2023 سے آ رہے ہیں. تو آپ کے گردوں میں کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ میرے گردوں میں پین ہونی شروع ہو گئی 2003 میں. اچھا. 23 میں. اچھا. تو میں نے منصورہ اسپتال سے جا کے چیک کروایا. اچھا. اس وقت کریٹن جو تھا میرا 2.7 تھا. اچھا. اور پین ہو رہی تھی دونوں سائڈوں پہ. صحیح ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یہاں کو کڈنی اسپیشلسٹ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں نہیں ہے, رحمان فاؤنڈیشن پہ چلے جاؤ. صحیح ہے. ان کا انہوں نے بتایا وقار نیاز صاحب کا. جی جی. تو میں یہاں آ گیا ان کے پاس, ان کو بتائی ساری صورتحال. انہوں نے اپنی لیب میں دوبارہ چیک کروایا, ریزلٹ وغیرہ سارے. تو وہ دیکھ کے وہ انہوں نے دوائی شروع کی مجھے دینی. تو اس سے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اب میرا جو ہے نا وہ کریٹن جو ہے 1.8 پہ ہے. اب آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں.
अच्छा, 100% मुतमईन है? 100% मैं उस दिन से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, उस दिन से आप बिल्कुल ठीक है। तो आपके गुर्दों में दरअसल तकलीफ क्या थी? पेन थी, कोई पथरी थी, क्या था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से यहाँ पर आई हूँ ना मेरी रिपोर्ट 1 पे आ रही है, 1.9, 1.7। अच्छा और जो यूरिया है वो 63, 68, 7 पर बस इतना आ रहा है। अच्छा बहुत अल्लाह का करम है, मेरी रिपोर्ट बहुत बेहतर आ रही है, बिल्कुल 100% सही। अच्छा, मैं मुतमईन हूँ, तो 8 साल से आ रही हूँ। हाँ, अल्लाह ताला आपको शिफा दे जी। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, और कोई 8 मंथ पहले मेरा ये मामला डायग्नोज हुए हैं और 5th स्टेज पे मेरे किडनीज पहुंचे हुए थे। अच्छा और ट्रांसप्लांट का रिकमेंडेशन कर दिया था मुझे एलोपैथिक डॉक्टर्स ने। अच्छा जी, और डायलिसिस का उन्होंने कह दिया था कि नेक्स्ट वीक में आप आ जाएं। उसी दौरान मुझे इंटरनेट पर कुछ डॉक्टर साहब के बारे में डिटेल। अच्छा, मैं यहाँ आपकी बात काटूंगा। आपको गुर्दों में तकलीफ किस तरह महसूस हुआ कि गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है? पता कैसे चला? सर, मेरे जो जॉइंट्स हैं वो उनमें स्वेलिंग आती थी। अच्छा, तो वो शुरू में तो पता नहीं लगा, लेकिन जब ये क्रेटनाइन और यूरिया के टेस्ट करवाए हैं तो 11 पे क्रेटनाइन था मेरा और यूरिया 200 के करीब पहुंचा हुआ था। तो बस उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। एलोपैथिक डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि एडमिट हो जाएं, यहाँ पर डायलिसिस शुरू करें, ट्रांसप्लांट की तैयारी करें। अच्छा, तो वो मामला बहुत ज़्यादा ज़रा सख्त। तो जब आपने ट्रांसप्लांट का सुना तो जाहिर है ये थोड़ा मामला हसास होता है, तो बंदा डर भी जाता है। तो उसके बाद फिर आपको इनका पता, डॉक्टर वकार जी जी, मैं फिर उसके बारे में पहले से रिसर्च कर रहा था कि मुझे कुछ पता लगे, कोई हैं इस तरह डॉक्टर अच्छे। तो मुझे यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर वकार साहब के बारे में पता लगा। तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा इनकी वीडियोस देखी, तो उसमें पेशेंट्स के रिव्यूज़ भी थे। और उसके बाद मैं खुद आया और पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मेरा क्रेटनाइन जब डॉक्टर साहब ने पहला प्रोसेस किया मेरा इस्लामाबाद में, तो 11 से मेरा 3.9 पे आ गया था। अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो उसके बाद से मामला ठीक थोड़ा सा शूट किया उसके बाद, लेकिन अंडर कंट्रोल है मामला। स्वेलिंग वगैरह मेरे जॉइंट्स में बिल्कुल नहीं होती काफ़ी मंथ से। और बस मैं दवाई खा रहा हूँ डॉक्टर साहब। गुर्दों में दरअसल आपको तकलीफ क्या है? मैं जो कराची में होता था और तकरीबन 24 साल पहले थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा। अच्छा, और फिर टेस्ट करवाया तो पता चला मेरा किडनी पर प्रॉब्लम है। अच्छा, तो एलोपैथिक चलता रहा। फिर 4 साल पहले फिर लाहौर शिफ्ट हुआ। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि भई अब आप जो है डायलिसिस पे आ जाए। अच्छा, तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर डॉक्टर साहब को पता चला। यहाँ आए और 4 साल हो गए इनकी दवाई ले रहा हूँ और माशाल्लाह आपके सामने अब कोई तकलीफ नहीं है आपको? कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल। किडनी के हवाले से कोई तकलीफ नहीं। किडनी का इलाज आप करा रहे हैं, तो बाकी वो और जो एज के हिसाब से हुआ है, लेकिन किडनी के हिसाब से कोई तकलीफ। ये बताएं कि आप यहाँ पर विजिट करने आई हैं, पेशेंट हैं, किस तरह? एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मेरे हस्बैंड जो हैं तकरीबन 25 ईयर पहले कराची में इनको ब्लड प्रेशर हुआ, जो ऊपर का 190 था और नीचे का 100 था। तो फिर हम लोग बहुत परेशान हुए, काफ़ी ये इनकी हालत ख़राब थी। तो हम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, तो हमने वहाँ जाके इनके टेस्ट वगैरह कराए। तो पता चला FSGS एक बीमारी है गुर्दे की, जो कि 1% लोगों को होती है पूरी दुनिया में। तो वो इनका जब बायोप्सी की गई आगा खान हॉस्पिटल में, तो पता चला इनको FSGS हुई है। अच्छा, तो FSGS ज़ाहिर क्रिटिकल थी, हम भी बहुत परेशान थे। तो फिर एलोपैथिक में इनका होता रहा इलाज वगैरह। लेकिन अभी 4 साल पहले लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर कंवर नवीद, हेड ऑफ द नेफ्रोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा या तो डायलिसिस पे आ जाओ या फिर किडनी ले आओ तो तुम्हारा ट्रांसप्लांट करेंगे, इसके अलावा तुम्हारा कोई हल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मैं बहैसियत तीमारदार मैं इनका ज़्यादा फिक्र भी रखती हूँ और इतलात भी रखती हूँ चीज़ों की। तो फिर मैंने कहा कि क्या किया जाए। तो घर पे डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब के बारे में सुना था कि ये डायलिसिस से बचा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस के बिल्कुल किनारे पे थे ये। तो जब हम डॉक्टर साहब के पास आए 4 साल पहले, तो फिर डॉक्टर साहब ने इनकी मेडिकेशन शुरू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से डायलिसिस से ही बचे हुए और किडनी ट्रांसप्लांट का भी खतरा टला हुआ है। गुर्दों में क्या मसला है आपका? गुर्दों में तो मेरा ना मोशन वगैरह आ रहे थे। अच्छा, वगैरह जब टेस्ट करवाया ना, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गुर्दों का मसला है। तो आपको पूरे लाहौर में कोई डॉक्टर नहीं मिला? आप इधर मॉडल टाउन आ गए? नहीं सर, मैं इधर न्यू अस्पताल में गया था। अच्छा, उन्होंने टेस्ट वगैरह सारे चेक किए, उन्होंने कहा जी डायलिसिस होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, मैं कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, इसके अलावा कोई हल नहीं। 3-4 माह बाद अगर नहीं डायलिसिस करवाएंगे डेथ हो जाएगी या फालिज आपको हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं। फिर मैंने हिम्मत हार की, मेरे अजीज हैं
उन्होंने बताया था डॉक्टर साहब का। फिर इनके पास आए, बीच जेल पे मैं आया था। डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने कहा जी आपको कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मैं आपका इलाज करूँगा। मुझे हौसला हो गया। वैसे वो उन्होंने कहा था कि मर जाओगे या मतलब कि फादर हो जाएगा। इन्होंने आपको डराया नहीं? नहीं, इन्होंने हिम्मत दी, इन्होंने कहा नहीं घबराना नहीं है, मैं आपका इलाज करूँगा। 3 साल हो गए हैं जी इनको, और अब वो कहते हैं कि बाकी जगहों पर हमें डराया गया और यही कि बस बंदा जो है वो गया, लेकिन यहाँ पर आया डॉक्टर साहब हिम्मत भी हार गया था। डॉक्टर साहब ने डराया नहीं, डॉक्टर साहब ने इलाज भी किया और तसल्ली दी और अब माशाल्लाह से बड़े मुतमईन हैं। कब से आप आ रही हैं डॉक्टर साहब के पास? 19 साल हो गए। 19 साल से ये पेशेंट यहाँ पे आ रही हैं। 19 साल पहले आपको गुर्दों का मसला बना? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि 19 साल से आप इधर आ रही हैं, आप मुतमईन हैं, इलाज मुआवजा आपका अब ठीक हो गई हैं, फिर आ रही हैं? नहीं, या अब मेरे 8 रुपए लीटर था। हाँ। तो उन्होंने कहा है, डॉक्टर ने कहा है कि जाके तो डायलिसिस करवा लो। अच्छा। 3 महीने का उन्होंने मुझे टाइम दे दिया था कि आप 3 महीने के बाद आपकी जिंदगी का आखिरी टाइम है। तो मैं 4 महीने हो गए हैं मुझे, डॉक्टर साहब को आके बताया, तो मैं इंशाल्लाह ठीक हूँ। अब ठीक है। 19 साल पहले इनको मसला हुआ और इनके डॉक्टर वकार अहमद नियाज और इनकी टीम की जो मेहनत है और इनके फार्मूले के तहत डायलिसिस जो है वो डिले हुआ और अब वो मुतमईन है। कहाँ से तशरीफ लाई हैं? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से आप आई हैं? गुजरांवाला और लाहौर सफर काफी है, वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हकीम भी हैं, तो आप उधर से इधर आई हैं, कैसे पता चला डॉक्टर साहब का आपको? मेरी भाभी लगी है गंगा, हमें उन्होंने बताया था इधर। अच्छा, उनके गंगाराम भी देखें एक अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ से उन्होंने डॉक्टर साहब का बता दिया आपको? हॉस्पिटल में मेरे 4 डायलिसिस हो गए थे। अच्छा। फिर 5 हो गए। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि मैं रोक लूंगा। अब रुक गए आपके? 4 साल से रुके मैं। 4 साल से रुके हुए हैं। बीयू से भी इलाज कराया, गंगाराम से आपको मशवरा मिला, गुजरांवाला से आती हैं, डायलिसिस जो है वो रुक गए, अब नहीं होते, डिले हो गए। तो ये बड़ा अच्छा केस है कि एक हम लाहौर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और ये गुजरांवाला से आई हैं। जाहिर है डॉक्टर वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, ये नहीं कहना चाहिए, उधर भी इलाज लोग करते हैं, लेकिन अगर ये इधर आए तो उसका मतलब है यहाँ कुछ खास है। आप कहाँ से तशरीफ लाए? जी मैं कसूर से आया हूँ। अच्छा, कसूर से आए हैं। जैसे मैंने उनको कहा वो गुजरांवाला से आए, आप कसूर से हैं, कसूर में भी डॉक्टर तो हैं, तो आप यहाँ क्यों आते हैं? मैं सर्वस्ताद दाखिल था। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। ठीक है। वहाँ मेरे गुर्दे खराब हो गए। अच्छा, 2023। ठीक है। 5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ, 2 ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ 7 ਦਫਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, अब नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, दवाई खा रहा, तो इलाज मेरा फ्री हो रहा है। इलाज भी फ्री हो रहा है, कसूर से आते हैं, डायलिसिस डिले हो गए हैं, अब वो मुतमईन है, अब कोई तकलीफ नहीं है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोगों को बताते हैं, लोगों को यकीन आ जाता है? मैं कैसे? कार्ड देता हूँ लोगों को। अच्छा जी जी, मैं खुद भजन लोगों को भेजता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं गुर्दों की जब आम हम जैसे आप कसूर से आए ना, पंजाबी में कहते हैं गुर्दों की सफाई शुरू होगी तो गुर्दे गए, नहीं बंदा गया। मेरी उल्टी आती थी। अच्छा, उल्टी आती थी, खांसी। तो अब ठीक है सारा कुछ? ठीक है। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रही हैं और कितना मुतमईन है, इलाज मुआवजा आपका कैसा हो रहा है, बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 22 साल से आई और मैं बहुत मुतमिन हूँ। मेरा ये था कि मैं बहुत स्वेल हो गई थी मेरी बॉडी, मैंने अपने ना कपड़ों की सिलाइयाँ वगैरह खोल के कपड़ों को पहन ली। भाई का पता चला, इधर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ऐसी मेडिसिन नहीं कि मेडिसिन से मेरी प्रोटीन भी कंट्रोल में है और मैं डायलिसिस पे नहीं गई, मेरी बिल्कुल मशीनों पे मैंने गई। ये तो ये वो मसीहा है कि कोई गुरबा ऐसा देखते हैं तो उसको जाते वक्त किराया भी देते हैं। किराया भी दे देते हैं? दे देते ये हैं। तो और फर्स्ट टाइम मैंने सबसे सुनी है कि बड़ी डॉक्टर बात इलाज ये भी है- मुफ्त कर रहा है और किराया भी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात सच्ची बात है किराए वाली? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात है कि कुरान के साथ अच्छा, वो कहते हैं कि सूरत रहमान कारी अब्दुल बासित सुने। अच्छा, यहाँ तक कि मेरे गुर्दे में शगाफ था, अच्छा। वो भी भाई की मेडिसिन से कंट्रोल, होल मेरा बिल्कुल अब इतना सा रह गया। अच्छा, अब मैं बहुत मुतमिन हूँ, अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ और ग़िज़ाई चार्ट के ज़रिए अपना पूरा फॉलो कर रही हूँ। मुझे कोई मसला होता है मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमिन हूँ और पुरसुकून लाइफ। बताइएगा जी, कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं लाहौर कसूर से आ रहा हूँ, ये काने से। अच्छा, काने से आप आए हैं। आपका गुर्दों का मसला है, कब से आ रहे हैं आप? पठान हूँ। अच्छा, पख्तूनख्वा का रहने वाला हूँ। अच्छा। उधर मेरा नाम है। अच्छा, और मैं 2.5 साल से यहाँ पे इलाज करने के लिए 2.5 साल से इलाज करा रहे हैं। इनके इलाज से मुतमईन है, कहीं और तो नहीं जाना पड़ता नहीं आपको? नहीं, बहुत जनरल वालों ने कहा कि तुम डायलिसिस पे आ जाओ।
अच्छा, फिर किसी ने बताया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर वकार नियाज साहब का। अब तकलीफ नहीं है आपको? कोई तकलीफ नहीं है, बहुत मंदाई हूँ, बहुत दवाइयाँ दे कर सामने नहीं कह रहा हूँ। अच्छा आज नमाज के बाद इसको दवाई दे रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाज़ दफ़ा होता है कि यहाँ जहाँ शफा होती है ना, वहाँ बाज़ दफ़ा पैसा भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई लाखों रुपए ले रहे हो? ऐसा तो नहीं है? कोई पैसा नहीं, अपने आप खुद दिया मुझे। आपसे पैसे नहीं लेते? नहीं, कई बार इसने खुद अपना आपसे पैसे दिया कि ये ले जाओ, क्या बात है। लगाओ। ये तो दुनिया के पहले डॉक्टर हैं जो पेशेंट को सेहतयाब भी करते हैं, जेब से पैसे भी दे देते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये कब से आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कब से यहाँ पे आ रही हैं? गुर्दों में मसला दरअसल है क्या आपका? मेरे 6 साल हो गए हैं, गुर्दे मेरे सिकुड़ गए थे और अच्छा। मैं इधर उधर से काफ़ी जगह से इलाज कराया, कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर सर्विस हॉस्पिटल गई हैं, उन्होंने मेरे यहाँ ये चूल्हा बनाया, वो ख़राब हो गया था। फिर वहाँ एक दिन बैठी, मैं रो रही थी, तो पास ही कोई लड़का बैठा हुआ था, फिर उसने मुझे इन डॉक्टर साहब का बताया। वो अल्लाह ने आपकी मदद कर दी। हाँ जी, यहाँ मैं आई तो फिर माशाल्लाह से बहुत अच्छी दवाई है। पेशेंट और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से आ रही हैं और कितना फ़र्क है आपको डॉक्टर वकार अहमद नियाज के इलाज से? ये तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुकम्मल सेहतयाब? मुकम्मल सेहतयाब हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगी आप? डॉक्टर साहब बहुत नाइस आदमी हैं, बहुत अच्छे रहे। इनके इलाज से अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह के मैं बिल्कुल मुझे चला फिरा नहीं। जब मैं आई थी मेरा 9 पे था क्रिएटिनिन यूरिया। अच्छा, अब मेरा 2 पे रुका हुआ है। तो आप लाहौर से हैं या बाहर से कहीं से? जी, मैं लाहौर से हूँ। तकरीबन 2 साल तो मेरा 2 थे। अच्छा, 9 पे था अब और 2 पे है। 2 पे आ गया। जी, ये जी। बड़ी बात होती है कि एक पॉइंट बहुत ऊपर चला जाता है 9 पे या खुदा न खासा 10 पे, तो वो नीचे आ जाए। तो आप मुतमईन है, कोई तकलीफ नहीं है आपको? कोई तकलीफ नहीं मुझे, मैं मुतमईन हूँ डॉक्टर साहब के इलाज से। जी, आपका गुर्दों का मसला अपना है? जी, मेरा अपना था। कब से है? मुझे 5 साल हो गए इनके पास आते, मैं कराची से हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने मेरा इलाज किया है। मैं बिल्कुल चारपाई के साथ लगी थी। अच्छा, गुर्दों के ऊपर खून के बोल बन गए थे, तो वो बहुत डेंजरस था, मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। माशाल्लाह 5 साल हो गया मुझे, अब माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, तकलीफ नहीं है। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह बिल्कुल मेरी बेटी ठीक ठाक है। उन्हें नदी दवाई खाना पहले तो जैसी पकड़ के लेके आए। अच्छा। बहुत उसकी तबीयत खराब, जैसे जैसे दवाई खाई वैसे वैसे माशाल्लाह मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर वकार साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जज़ाकल्लाह। इन्होंने मेरी सिस्टर का बहुत अच्छा इलाज किया और ये बड़ी बाजी थी, इनका भी बहुत अच्छा इलाज किया। ये बिल्कुल चारपाई पे थी, वॉशरूम में नहीं जा सकती थी, माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हैं, अब खुद चल के जाती हैं। डॉक्टर साहब के पास कब से आ रहे हैं? मैं जी तकरीबन 22-23 साल से आ रहा हूँ। 23 साल से आ रहे हैं? जी, मेरा वो प्रोटीन का मसला था बहुत ज़्यादा। मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ, 23 साल से? जी बिल्कुल मैं आ रहा हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको? पहले तो जरूरत थी, पहले तो डॉक्टरों के पास ही गया था। तो उसके बाद मेरे हाथ पाँव सूज गए थे, ये सारे जोड़। मेरे घर वाले ना यहाँ मुझे उठा के लेके आए थे। अच्छा, उस वक्त मैं चल नहीं सकता था, तो अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब की दुआ से मैं तो बच गया अभी तक। 23 साल से जी मैंने जिनसे बात की ना, सबसे ज़्यादा जो अरसा है वो इनका मुझे लग रहा है 19 साल वाला भी था, और भी थे। ये मेरी मदर हैं जी। अच्छा। और हम तकरीबन 2020 से यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं। हमें किसी ने बताया था, किसी से रेफरेंस से आए थे, तो इनके डायलिसिस होते रहे, 12 डायलिसिस हुए थे। उसके बाद तकरीबन 2020 से फरवरी 18 से अब डायलिसिस नहीं हुए, तो तकरीबन 5 साल का अर्सा हो गया कि अब डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कर्नल साहब, मुझे बताएं कुछ और अहम बात अगर आप करना चाहें तो, ताकि नाजरीन तक वो भी हम पहुँचा सकें। इस लिहाज से काफ़ी मेरी तशफ़ी हुई है कि इतने मरीज़ों को आज इकट्ठे देखा है और साल के पेशेंट्स हैं यहाँ पे, और इनकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पहले इनका क्रेटिनाइन लेवल और यूरिया के जो लेवल्स थे वो ज़्यादा एलिवेटेड थे, और अभी माशाल्लाह न सिर्फ ये कम हो चुके हैं बल्कि स्टेबल चल रहे हैं। ये बहुत ही गैर मामूली चीज़ें हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डायलिसिस से पहले डॉक्टर साहब के पास आएँ ताकि उनका डायलिसिस डिले हो जाए। अच्छा, मुझे कर्नल साहब ये बताएं कि क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है माशाल्लाह, बड़े बासलाहियत डॉक्टर मौजूद हैं, तो कोई ऐसी मिसाल पाकिस्तान के अंदर और आपको मिलती है? मतलब अगर हम गैर जानबदार होकर देखें।
मेरे लिए तो यही तो हैरत की बात थी, इसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया था कि ये कैसे हो सकता है कि डायलिसिस एक एलोपैथिक डॉक्टर जब रेकमेंड कर दे तो उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि वापसी हो सके। ये तो ऐसी पटड़ी है जिसके ऊपर आपने चढ़ना है और फिर कब्र में ही उतरना है, तो ऐसा मामला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर साहब से बड़ी डिटेल में मुलाकात हुई और इनके मरीज़ों से जो मेरी बिलमुशाफा भी मुलाकात हुई, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, इनकी बातें सुनी, और सारे रियल केसेस हैं, रियल लाइफ केसेस हैं। तो कैसे मेड अप केस नहीं है ये प्रॉपर एक फैक्चुअल सिचुएशन है, जिसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहब से और इनके मरीज़ों से मिलकर। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर साहब के पास आएँ। इनके 11 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये लार्जेस्ट फ्री डायलिसिस सेंटर्स का नेटवर्क है पाकिस्तान में गवर्नमेंट के बाहर। तो अभी ज़रूरत ये है कि कराची के पेशेंट्स हैं तो कराची के सेंटर में जाएँ, और जो लाहौर के हैं वो लाहौर में आएँ, एंड सो ऑन सारे बाकी सेंटर्स के अंदर आएँ। डॉक्टर साहब मुझे खुशी हुई, वैसे तो आपके साथ प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं, लेकिन आज जो जितनी बड़ी तादाद लोगों की जो मुतमईन लोग हैं, आज दिल से खुशी हुई। तो क्या कोई फाइनल पैगाम देना चाहें लोगों को अपने सर्विसेज के हवाले से या गुर्दों के इलाज मुआवजे के हवाले से? सबसे पहले जो टेस्ट है ये RFT टेस्ट है गुर्दों का, वो मुझे भी करवाना है, वो मुनाजर भी आपको भी करवाना है। जो नाज़रीन प्रोग्राम जहाँ जहाँ देख रहे हैं सबको टेस्ट जरूर करवाना है। गुर्दों का टेस्ट है, हमें पता चल जाए कि मरीज पोजीशन क्या है। अगर अल्लाह न करे गुर्दों का मसला आ गया है तो हम अपनी खुराक का ख्याल करें, हम अपनी प्रोटीन को कम कर लें, एसिड को कम कर लें, अल्कलाइन पे ज्यादा है, अल्कलाइन वाली खुराकें लें। ये वही खुराकें अल्कलाइन वाली जो हमारे प्यारे नबी पाक को पसंद है। बाकी एक अल्लाह ने हमें मौका दिया है, जरूर हम हाजिर है। जो गरीब लोग होते हैं, मुस्तक लोग होते हैं, मैं उनका इलाज फ्री करता हूँ, पिछले 23 सालों से कर रहा हूँ। मुझे शुबा मुझे विरासत से मिला। मेरे वाल साहब एक एलोपैथी डॉक्टर थे, बड़ा नाम था डॉक्टर नियाज साहब, अल्लाह उनका दर्जात बुलंद फरमाए, उनके हाथ में बड़ी शफा थी। मुझे कुछ चीज़ें विरासत में मिली हैं। मेरे साथ इस टाइम 25 MBBS डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, जो इस टीम का हिस्सा है, इस अदारे का हिस्सा है। तो मेरी खुशकिस्मती है, हम मेडिकल से चलते हैं, हम वो नीम हकीम नहीं है कि बाजी डायलिसिस बंद कर दें और आंखें बंद कर लें। हम टेस्ट भी करवाते हैं, गुर्दों के टेस्ट भी हो रहे होते हैं, मरीज की कंडीशन भी देख रहे होते हैं। जहाँ पे डायलिसिस की जरूरत होती है हम करवाते भी हैं, नहीं जरूरत है तो हम उसके 10 साल 15 साल 20 साल निकलवा सकते हैं। उसके लिए जो अल्लाह ने हमें चीज से नवाजा है मुनाज़र भाई, ये वो फार्मूला है क्रिटेंसिल और यूरेनसिल जो हम देते हैं लोगों को, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है और लोगों के डायलिसिस डिले हो रहे हैं। और ये आप साथ दवाई देते हूँ मेडिसिन साथ में, इसके चार्जेस में लेता हूँ। मुनासिब से चार्जेस होते हैं, जो दे सकते हैं उनसे हम लेते हैं, जो नहीं दे सकते हम उनसे नहीं लेते। हमारा एक कारवां है, तनावर दरख्त बनता जा रहा है, लोगों का इंसानियत का यहाँ पे एक भला हो रहा है। चलें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी हम कोई इस तरह की चीज़ लेके आएंगे ताकि नाजरीन को और आगाही हासिल हो। नाजरीन आपने सुना डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, मरीज़ों के जो तासुरात थे वो भी आपने सुने। आप या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज़ जिसको गुर्दों का अर्जा लाक है तो डॉक्टर वकार अहमद नियाज के बारे में आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो डॉक्टर साहब का नाम, इनका मोबाइल, इनकी टीम, सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।